Hi everyone, a very warm welcome to everyone in this today's session. Today we are going to see the last scene of Act 1, that is Act 1, Scene 7 of Macbeth, okay, uh, which is one of the most important scene, okay, it is one of the most important scene in your Act 1, isn't it? And this scene contain a lot of interesting things also, okay. So let's see about Act 1 Scene 7. As you know, I'm making this video after a long time, isn't it? So let's quickly revise Act 1 Scene 6 to form a hierarchy, okay? So that you do not disconnect with the previous scene. So let's quickly revise about Act 1 Scene 6. So Scene 6 was ironical in nature. We all know this, okay. I hope you all means you all are revising the scenes because they are very important. You have to revise them, okay. So let's quickly take an overview of Act 1 Scene 6. So Scene 6 was ironical in nature. Why it is why it was ironical in nature? Because Duncan came to Macbeth's castle, to Macbeth's palace, that is Inverness. But when he's about to enter, okay, in the Inverness, the environment was very peaceful. The environment of Inverness was very good. It was very calm. By seeing the environment, by seeing the nature of Macbeth's palace, Duncan got affectionated. He got affectionate, okay, and he became very happy, okay. And he also said that this is the best place for martlet, okay, this is the best place for martlet to lay its egg, isn't it? He said this is the most peaceful place, okay. So Duncan is appreciating his palace, but he is totally unaware that the palace is having a very cruel nature. Because in this palace, in the same palace where today Duncan is appreciating, okay, on the same in the same palace he's going to die. Who will murder him? Macbeth, okay. Again, Macbeth was not bad, but his spouse, his wife, Lady Macbeth, he arose the fire, he arose the devilness in Macbeth. Okay, I hope till now all the things are clear. Okay, the last lines of Macbeth Act 1 Scene 6 was that Lady Macbeth came, okay, and she tried to butter up Duncan that you are our servant. Sorry, we are our servant. Okay, and it is our house. Okay, it is my house. It means it is your house because you are our master. ठीक है, आप मेरे सर्वेंट, आप मेरे मास्टर हैं, बट ये हाउस भी आपका ही है. सो डोंट बी वेरी शाय, आप अपना ही घर समझिए इसे. ओके ओके. सो Duncan says at the last speech of Duncan was that conduct me your hand, conduct me to mine host. We love him highly and shall continue our graces towards him by your leave, hostess. Means he says that let's take me to the Macbeth because we're going to talk, we're going to spend some time together in the Inverness. So here the scene exeunt, scenes Act 1 Scene 6. Now let's see Act 1 Scene 7 first. Now Duncan has he has in the Inverness, okay, same place, the scene takes place in the same place, okay, in the Inverness, and there's a banquet in honor of King Duncan. Okay, there's a banquet takes place by Macbeth and Lady Macbeth in honor of the King Duncan. Why he is doing this? Why he's like doing this banquet and all these things, feast? Okay, why there is a feast for Duncan? Because they want to win. They want to win Duncan's mind, their heart, his heart. Okay, वो डंकन के हार्ट को जीतना चाहते हैं वो लोग, ठीक है. तो इसलिए उन लोगों ने दावत रखी हुई है. ओके, एंड
उन्होंने ही डिबेट विद हिमसेल्फ वेदर टू मर्डर डंकन मीन्स, और जो मैकबेथ है वो बहुत ज़्यादा टेंस है, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है कि उसे डंकन को, मतलब उससे ये जो प्लान उसने बनाया है उसे एग्जीक्यूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मीन्स उसे डंकन को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। तो मैकबेथ इज़ टोटली इन कन्फ्यूज़न। पर लाइक जो लेडी मैकबेथ है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है, और वो डंकन को, सॉरी, वो मैकबेथ को क्या करती है, उसे मतलब उसके अंदर एक फायर को जलाती है कि तुम्हें डंकन को मारना चाहिए। ओके, इस तरीके से। तो फाइनली डंकन जो है वो, फाइनली जो मैकबेथ है वो डंकन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्ट 1 सीन 6। ओके, this is quite tough scene, so let's see. Okay, act 1 scene 6, it takes place in the Duncans, in the Macbeth's castle in Venice, where hot boys, okay, hot boys means the instrument, okay, it is an instrument I have told you, okay, like a trump, it is like this, okay, something like this. I hope you can relate it. Okay, so there's a like hot voice, there's an instrument going on. Okay, torches, क्यों टॉर्चेस हो रही हैं, नो नीड टू टेल, बिकॉज रात का समय है, डंकन डिनर करने आए हैं, सफ़र करने आए हैं, तो उस टाइम पे ऐसा सच कुछ होता नहीं था ज़्यादा, है ना, तो सिर्फ टॉर्चेस वहाँ पे मसाल जो हैं वो जलाई हुई हैं। नाउ एंटर अ स्वेयर, स्वेयर कौन है, एंटर अ स्वेयर, स्वेयर होता है जो खाने की देख रेख रखता है। ओके, जो खाने की मतलब देखभाल करता है, बहुत सारी खाने को ऑर्गेनाइज रखता है, उसे हम कहते हैं स्वेयर। डाइवर्स मीन्स डिफरेंट टाइप्स की जो लाइक दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेज आर देयर, वेरियस टाइप्स के सर्वेंट्स हैं यहाँ पर। डाइवर्स सर्वेंट्स मीन्स डिफरेंट टाइप के सर्वेंट्स हैं। ओके, स्वेयर का मतलब होता है कि जो डिफरेंट, जस्ट वेट, ऐसे ही समझा देते हैं। ओके, एंटर अ स्वेयर, स्वेयर का मतलब होता है द बटलर। ओके, बटलर एंटर करता है मीन्स पर्सन हु ऑर्गेनाइज द फूड एंड वाइन। नेक्स्ट, डाइवर एंटर, डाइवर मीन्स द वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सन्स, एंड डाइवर्स सर्वेंट्स मीन्स वेरियस टाइप्स के सर्वेंट्स एंटर करते हैं विद डिशेज एंड सर्व्स ओवर द स्टेज, और वो डिशेस को जो मतलब जितना भी बना होता है सब कुछ खाना वगैरह वो सब स्टेज के ऊपर ले जाते हैं फॉर द डंकन। ओके, नाउ एंटर मैकबेथ, अब मैकबेथ एंटर करता है। ठीक है, अभी मैकबेथ एंटर करेगा फिर चला जाएगा, क्यों चला जाएगा अभी आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैकबेथ सेज इफ, Macbeth says, if it were done when 'tis done, then it were well, it were done quickly. Means कहना चाह रहा है if it would be over once the deed is done, then it would be best to do it fast. मतलब अगर हमें डीट करना ही है, अगर हमें डीट करना ही है तो हम उसे जल्दी कर देते हैं, हम उस डीट को जल्दी निपटा देते हैं। ठीक है, ये सही रहेगा अगर हम उस डीट को जल्दी निपटा देंगे। डीट क्या है, डीट डंकन को मारना। मतलब मैकबेथ कहना चाह रहा है कि अगर हमें मारना ही है डंकन को, किंग डंकन को, तो हम जल्दी मार देते हैं। ठीक है, हम ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं। देन इफ द असैसिनेशन could trammel up the consequence and catch with his Circe's success, but this blow might be the be all and the end all here. But here upon this bank and shore of time, we will jump the life to come. But in these cases, we still have judgment here, that we but teach bloody instructions, which being taught return to plead the inventor. This even-handed justice commands the ingredients of our poison chalice to our own lips. Means कहना चाह रहा है
कि if the murder could somehow gather up and control its own consequence and Duncan's dad grant me the success I look for, then right now I would risk whatever happened to me in the afterlife. मतलब कहना चाह रहा है कि अगर डंकन की लाइफ छीनने से मुझे एक अच्छी ज़िंदगी मिलती है, मेरा जो मुझे एक किंगशिप का टाइटल मिलता है, मुझे एक राजा होने का टाइटल मिलता है, तो यही होने दो, ये काफ़ी अच्छा है। इसके बाद मेरे जो इतने भी दुख हैं वो सब सुख में बदल जाएंगे। बट फॉर डीड्स लाइक दीज देयर आर कॉन्सिक्वेंस here in this life. We set an example by our bloody deeds and that teaches others to do the same to us. और ऐसा करने से लोगों को एक एग्जाम्पल मिलेगा कि हमें जो मतलब अपने काम के लिए हमें दूसरों को मार देना चाहिए। अगर हमारा काम बनना है तो उसमें हम दूसरे को अगर मार दें तो हमारा काम और भी आसान हो जाता है। ये एग्जाम्पल हमारे इस एक्ट से ये एग्जाम्पल होगा। एंड दैट टीचर्स अदर्स टू डू द सेम टू अस, और यही बताएगा कि दूसरों को यही शिक्षा देगा, यही इंस्ट्रक्शन देगा कि ऐसा ही हमारे साथ भी हो जाना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो मैकबेथ है वो खुश नहीं है, वो डंकन को नहीं मारना चाहता। ठीक है, कौन मारना चाहता है? लेडी मैकबेथ मारना चाहती है। ठीक है, तो मैकबेथ कहता है कि अगर हम आज डंकन को मारेंगे तो कल कोई और हमें भी मारेगा, इस एग्जाम्पल को वो कॉपी करेगा हमारे ऊपर। ओके, एंड दिस टाइप ऑफ जस्टिस वुड हैव अस ड्रिंक आवर ओन पॉइजन। और इस टाइप की जस्टिस के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपना ही जहर पीना होगा। अपना ही जहर पीना होगा मतलब क्या? ये एक जहर की तरह है कि आज हमें जो पीना है तो कल हमें मरना है। मतलब अगर आज हम डंकन को मारेंगे तो कल हम जब किंग बनेंगे, ऑब्वियसली वो क्यों कर रहे हैं ये सब? किंग बनने के लिए, है ना? तो अगर आज डंकन किंग है और उसे हमने मारा है तो कल को जब हम किंग बनेंगे तो कोई और आकर हमें मारेगा। मीन्स कहना चाहता है दैट वन डे द डेट विल कम टू एवरीवन। कर्मा सबके लिए आता है ना? तो यही कहना चाहते हैं, सिंपल सा। ओके, नेक्स्ट ओके, he is here in double trust. First, as I am his kinsman and his subject, strong both against the deed, then as his host, who should against his murderer shut the door, nor bear the knife myself besides this Duncan hath borne his faculties to me hath been so clear in his great office that his virtues will plead like angels trumpet talk had against the deep damnation of his taking off. मीन्स कहना चाह रहा है कि जो किंग डंकन है वो मुझ पर डबल ट्रस्ट करते हैं। वो मुझ पर डबल ट्रस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो मैं उनका रिलेटिव हूँ। याद है ना, डंकन और मैकबेथ दोनों कौन है? अंकल एंड कज़न है। ठीक है, डंकन इज़ द कज़न ऑफ मैकबेथ, सॉरी डंकन इज़ द अंकल ऑफ मैकबेथ, सॉरी। ओके, तो जो किंग है उनसे मेरे एक नहीं दो रिश्ते। एक तो हम आई एम द कज़न ऑफ हिम, ओके, एंड नेक्स्ट आई एम द थान ऑफ हिम। मैं उनका थान हूँ। आई एम द रिलेटिव ऑफ हिम, ओके, एंड नेक्स्ट सेकेंडली आई एम द होस्ट। आई एम द होस्ट एंड मीन्स कहना चाह रहे हैं कि जो किंग है वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं दो तरीके से। फर्स्टली आई एम द रिलेटिव, ओके, एंड हिज थान। मैं उनका रिलेटिव हूँ, उनका थान हूँ। आई एम द थान ऑफ काउडर, ओके। और दूसरी बात तो ये है, दूसरा सबसे अच्छा रीज़न ये है कि हम एक होस्ट की तरह आए हैं, ओके। मैं उनका होस्ट हूँ एंड हमारा क्या मतलब वो बनता है कि हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए उन्हें किसी भी मटेरियल से, ओके। हम होस्ट मतलब वो हमारे होस्ट हैं। डंकन जो है वो हमारे होस्ट की तरह आए हैं हमारे कैसल में, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम डंकन को हर मुसीबत से बचाएं, ओके, हर मटेरियल से हम उन्हें बचाएं। नॉट wield the murderer's knife myself,
ना कि हम खुद मर्डरर बन जाएं उनके। कहना चाह रहा है कि हमारे दो रिश्ते हैं, एक तो मैं उनका काइंड्समैन हूँ, रिलेटिव हूँ और थान हूँ। नेक्स्ट वो हमारे आज पैलेस में आए हैं, तो वो हमारे होस्ट हुए, तो हमारा क्या वो बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने रिश्तेदार को जो आए हैं, हम अपने रिलेटिव को हर मुसीबत से बचाएं, ओके, ना कि हम खुद उनके लिए मुसीबत बन जाएं, ओके। Besides, Duncan has handled his royal responsibility so humbly and ethically that his virtues would plead like angel blowing trumpet against his murder। मतलब जो किंग डंकन है वो अपनी रॉयल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतने अच्छे से निभा रहे हैं कि अगर उनकी मौत करने भी जाओ ना, तो जो एंजल्स हैं, जो गॉड के एंजल्स होते हैं, वो हमें ही उल्टा मारेंगी, हमें ही बचाएंगे, मतलब हमसे डंकन को बचाएंगे, isn't it? And pity like a naked newborn babe, here we are, and pity like a naked newborn babe striding the blast or heaven's cherubim host upon the sightless couriers of the air, about the sightless couriers of the air, shall blow the horrid deed in every eye, that tears shall down the beamed. I have no spur to prick the sights of my intent, but only vaulting ambition bit overlaps itself and falls on the other। मीन्स कहना चाह रहे हैं कि जो सब लोग हैं, अगर डंकन की मौत के बाद अगर वो लोग सुनेंगे, मतलब जितने भी कंट्रीज़ के लोग हैं वो सुनेंगे, स्टेट के लोग, तो वो बहुत रोएंगे, दे विल बीप अ लॉट, ओके। एंड माई only motivation is the kind of soaring ambition which can easily miss its jump and land improperly। और मेरा जो मोटिवेशन है डंकन को मारने का वो सिर्फ इतना ही है कि जो मेरा एम्बिशन है, इट इज़ एनहेंसिंग विच कैन ईजली मिस इट्स जंप एंड लैंड इम्प्रॉपरली, जो कि इसकी जंप अगर मिस हो गई तो ये बहुत बुरी तरीके से लैंड करेगा। कहना चाह रहा है कि अगर हम पकड़े गए, अगर हमारा ये मिशन फेल हो गया तो हम बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे, ठीक है। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। द स्पीच ऑफ द स्पीच ऑफ मैकबेथ इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर द स्पीच, ओके। सो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि ओके, वेयर वी वर, okay, here to prick the sights of my intent, but only bolting ambition which overleaps itself and falls on the other। मीन्स कहना चाह रहा है कि हम अपने एम्बिशन के लिए, कहना चाह रहा है कि मुझे एक ही चीज़ मोटिवेट करती है, दैट इज़ माई एम्बिशन, ओके, दैट इज़ माई एम्बिशन to prick sight of intended but only vaulting ambition which overlap itself falls on the other। अगर हम माउंटेन से एक हॉर्स से अगर माउंटेन को कूदें, तो हो सकता है कि जो हॉर्स है वो गिर जाए। कहना चाह रहा है कि बस मैं एक एम्बिशन के लिए इतना बड़ा डीड कर रहा हूँ, हो सकता है इसका कोई परिणाम ही ना निकले, हो सकता है कि हम पकड़े जाएं, या हो सकता है कि अगर हम डंकन को मार दें फिर भी हमारा जो ये एम्बिशन है जो हम चाहते हैं वो पूरा ना हो पाए। बिकॉज यू ऑल नो डंकन हैज़ 2 चिल्ड्रन, वन इज़ मैल्कॉम एंड डोनाल्ड वेन, ओके। तो मैल्कॉम को तो अपना मिल गया सब कुछ, पर डोनाल्ड वे अभी बाकी है। तो वो कहना चाह रहा है कि अगर हमने डंकन को मार भी दिया तो क्या पता डोनाल्ड वे हमारे बीच का या कांटा दोबारा बन जाए। समझ आ रही? आई होप द स्पीच ऑफ डंकन इज क्लियर टू यू। लेट्स सी व्हाट लेडी मैकबेथ नाउ सेज। ओके, अब लेडी मैकबेथ आ चुकी है। दिस इज द लॉन्गेस्ट स्पीच ऑफ मैकबेथ विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नाउ एंटर लेडी मैकबेथ। अब लेडी मैकबेथ एंटर करती हैं। हाउ नाउ, वॉट न्यूज़ मीन्स लेडी मैकबेथ थोड़ा सा
थोड़ा सा गुस्सा होकर कहती है कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पर। ओके, लेडी मैकबेथ कहती है कि ये क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पर। देन लेडी मैकबेथ अगेन सीज, he has almost supped, why have you left the chamber, मीन्स कहना चाह रही है कि किंग डंकन ने ऑलमोस्ट अपना डिनर स्टार्ट कर चुकी हैं। ओके, तुम क्यों, कहाँ चले गए, तुम डाइनिंग रूम छोड़कर कहाँ चले गए। मैकबेथ कहना चाह रही है कि किंग डंकन स्टार्ट कर चुके हैं अपना सफ़र, अपना डिनर, पर तुम कहाँ चले गए मैकबेथ। ओके, देन मैकबेथ सेज, हैड ही आस्क्ड फॉर मी, क्या उन्होंने मेरे बारे में पूछा, क्या किंग डंकन ने मेरे बारे में पूछा था तुमसे। देन लेडी मैकबेथ सेज, नो यू नॉट ही वॉज, क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो पूछेंगे, क्या तुम नहीं जानते कि पूछ सकते हैं वो। ओके, देन मैकबेथ सेज दैट we will proceed no further in the business, in this business. He has honored me of late and I have bought means, अब वो कहना चाह रहे हैं I have bought golden opinions from all sorts of people, means कहना चाह रहा है अब वो मना कर रहा है कि हम जो हमारा प्लान था पहले किंग डंकन को मारना, अब हम वो नहीं करेंगे, हम किंग डंकन को नहीं मारेंगे, हम इस प्लान को प्रोसीड नहीं करेंगे। क्या तुम्हें पता नहीं है कि किंग डंकन ने मुझे कितने ज़्यादा गोल्डन क्राउन्स दिए हैं, कितने ज़्यादा अच्छे टाइटल्स दिए हैं मुझे। सबसे पहले थैन ऑफ काउडर का दिया था, फिर थैन ऑफ ग्लम्स का दिया मुझे। ओके, कितने अच्छे टाइटल दिए, फिर बाद में मुझे इन्वर्नेस भी दिया है। मतलब इतनी सारे उपकार हैं मेरे किंग डंकन पर, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ओके, जितने भी उन्होंने मुझे ऑनर्स दिए हैं अभी, ओके, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हम किंग डंकन को नहीं मार सकते। देन ओके, नेक्स्ट, गोल्डन ओपिनियंस फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल विच वुड बी बोर्न नाउ इन देयर न्यूएस्ट ग्लॉस नॉट कास्ट असाइड एज सोसू। मतलब मैकबेथ कहना चाह रहा है कि मतलब हम इस प्लान को प्रोसीड नहीं करेंगे, हम अब इस प्लान से नहीं चलेंगे। क्या तुम्हें पता नहीं है कि किंग डंकन ने मुझे कितने अच्छे अच्छे टाइटल्स दिए हैं, थैन ऑफ काउडर का दिया है, थैन ऑफ ग्लम्स का दिया है, देन किंग का भी उन्होंने कह दिया था। ओके, किंग का नहीं कहा था, सॉरी, थैन ऑफ काउडर, थैन ऑफ ग्लम्स, देन उन्होंने मुझे इन्वर्नेस भी दिया। ओके, मुझे इन ऑनर्स को एंजॉय करने दो। ओके, और सारे लोग मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मेरी रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने मैकडोनाल्ड को मारा। ओके, मैंने किंग का विश्वास जीता और किंग ने मुझे इतने सारे ऑनरेबल प्रिविलेज्ड टाइटल्स दिए हैं। ओके, तो मुझे इस अच्छे टाइम को एंजॉय करने दो। ओके, मैं इन फीलिंग्स को बहुत जल्दी फेंकना नहीं चाहता। देन लेडी मैकबेथ सेज दैट नाउ ही, मतलब वो चिल्लाती है लेडी मैकबेथ, क्या कहती है, लेट्स सी, Was the hope drunk wherein you dressed yourself? Had it slept since? मतलब कहना चाह रही है कि was it drunken confidence you felt earlier? मीन्स जो तुमने पहले कॉन्फिडेंस सिखाया था, क्या उस टाइम पे तुमने शराब पी ली थी? क्या उस टाइम पे तुम, मतलब आर यू ड्रंक, क्या तुम उस टाइम पे पिए हुए थे? ओके, डिड इट drunken confidently slept it off? मीन्स वेयर आर यू ड्रेस्ड योर सेल्फ, हैड स्लेप्ट सिंस, मतलब तो तुमने पहले क्यों तैयार किया अपने आप को? क्या उस टाइम पे तुम सो रहे थे? क्या जिस टाइम पे तुम ये कर रहे थे उस टाइम पे तुम सो रहे थे और जगे हुए थे? ओके, इन ग्रीन और पेल इन फियर ऑफ द आइडिया, मीन्स कहना चाह रही है दैट was the hope drunk wherein you trust yourself, had just slept since, means was it drunken confidence you felt earlier? Did this drunken confidence slept it off? And does it feel hangover and sick thinking back on? मतलब क्या तुमने उस टाइम पे जो सोचा था, उस टाइम पे तुमने क्या शराब पी ली थी जो अब तुम मना कर रहे हो? क्या उस टाइम पे जो तुम नशे में बोल रहे थे ये सब कि हाँ मैं डंकन को मारूंगा और मतलब उनसे लाइक जो ये किंगडम है उसे छीन लूँगा? And makes it now to look so green and pale, and what it did so freely, means and now, और क्या अब तुम जग गए हो? मतलब क्या तुम्हारा नशा जो है वो उतर चुका है, जो इतने ज़्यादा तुम बीमार हो और मतलब बहुत ज़्यादा
काउडर्ड वाली बातें कर रहे हो बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे होता नहीं कवर्ड लोग होते हैं उनकी तरह बातें कर रहे हो। ओके, एट वॉट इट सो फ्रीली फ्रॉम दिस टाइम सच आई अकाउंट दाई लव आर्ट दाउ फियर टू बी द सेम इन thine own act and failure as thou art is desire. Wouldst thou have that which thou esteems the ornament of life, and live a coward in thine own esteem, letting I dare not wait upon I would, like the poor cat I the edges. Means कहना चाह रही है, तो तुमने पहले क्यों इतने जोश से कह दिया था कि हाँ मैं मारूंगा। Okay, from now on this is how I'll measure my love to me. Means कहना चाह रही है कि are thou afraid to be the same in thine own act and value. Means are you afraid to act as dog? Are you going to want the crown more than anything else in life but living like a coward? Means क्या तुम पहले तो तुम कह रहे थे कि मैं ये सब करूँगा वो सब करूँगा, पर अब तुम बिल्कुल कवाड़ों जैसी बातें कर रहे हो, मतलब बिल्कुल भीगी, मतलब बिल्कुल पागलों जैसी बातें कर रहे हो अब तुम। ओके, यू आर नॉट लाइक टू टेक द क्राउन, क्या तुम्हें क्राउन नहीं लेना? ओके, एंड लिव अ कवार्ड इन थाइन ओन एस्टीम, letting I dare not wait upon I would, like the poor cat I ages. Means कहना चाह रही है कि judgment caudices to the attended with, like the poor cat that ages. मतलब तुम बिल्कुल भीगी बिल्ली जैसे हो, जैसे बिल्ली भीग जाती है। ओके, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है दैट देयर इज़ अ प्रोवर्ब दैट जो बिल्ली होती है, कैट होती है, वो फिश पकड़ना चाहती है, पर वो पकड़ती नहीं है क्योंकि उसे डर है कि वो कहीं भीग नहीं जाए। ओके, तुम बिल्कुल उसी की तरह बात कर रहे हो। ओके, लाइक द पुअर कैट आइडन एजेस। मीन्स देयर इज अ स्टोरी जिसमें जो बिल्ली होती है वो फिश को पकड़ना चाहती है, पर वो उसे डर है कि कहीं वो भीग ना जाए, उसे इस बात का डर है कि वो कहीं भीग ना जाए। देन मैकबेथ सेज, मैकबेथ कहता है दैट प्रीति पीस प्लीज़ स्टॉप इट, प्लीज़ बंद कर दो अपनी ये बातें, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। आई डियर डू ऑल दैट मे बिकम अ मैन हु डेयर्स डू मोर इज नॉन। मीन्स आई एम विलिंग टू डू एवरीथिंग वर्दी ऑफ अ मैन एंड इवन हु डेयर्स टू डू मोर इज नॉट अ मैन। मीन्स कहना चाह रहा है मैकबेथ कि प्लीज़ अपनी ये बातें बंद कर दो, मैं सब कुछ करूँगा, ओके, जो एक मैन को करना चाहिए। ओके, मैं सब कुछ करूँगा जो एक मैन को करना चाहिए। नेक्स्ट लेडी मैकबेथ अब कहती है, लेडी मैकबेथ कहती है व्हाट ब्रेस्ट वॉज इट देन that made you break this okay, then Lady Macbeth says, what beast was then that made you break this enterprise to me? When you durst do it, then you were a man, and to be more than what you were, you would be so much more than man. Nor time nor place did then adhere, and yet you would make both. They have made themselves, and that their fitness now does unmake you. Means कहना चाह रही है कि then what kind of beast were you when you first told me about all this? मतलब क्या उस टाइम पे तुम्हारे अंदर, मतलब कहना चाह रही है what beast was done that made you break this enterprise to me? Means कहना चाह रही है कि उस टाइम पे कौन सा शैतान तुम्हारे अंदर घुस गया था जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि हाँ मैं डंकन को मारूंगा, मैं उससे क्राउन को छीन लूँगा। उस टाइम पे कोई क्या भूत घुस गया था तुम्हारे अंदर, कोई राक्षस घुस गया था क्या उस टाइम पे तुम्हारे अंदर? When you trust do it, then you were a man. Means when you dare to do it, when you were a man. शायद तुमने उस टाइम पे ये बातें कही थी जब तुम एक आदमी थे, जब तुम एक मैन थे। मतलब कहना चाह रही है कि उस टाइम पे तुमने बातें करी थी जब तुम एक मैन थे, अब तुम एक मैन नहीं रहे। ओके, एंड टू बी मोर देन वॉट यू वर, यू वुड बी सो मच मोर द मैन।
and to actually do it in order to become king, then you will be that much more than a man. And to actually do it in order to become king, you will be done much more than a man. मतलब कहना चाह रही है कि अगर तुमने डंकन को मार दिया और तुम किंग बन गए तो तुम एक मैन से भी ज़्यादा रिनाउंड पर्सनैलिटी हो जाओगे। मीन्स कहना चाह रही है कि पहले तो तुमने कहा कि चलो मैं कि हम लोग किंग डंकन को मार देते हैं, ठीक है, पहले तुम एग्री हो गए। उस टाइम पे क्या तुम्हारे अंदर के कोई भूत कोई राक्षस घुस गया था जिस टाइम पे तुम कह रहे थे कि हाँ मैं डंकन को मारूंगा, और अब तुम मना कर रहे हो। अगर तुमने डंकन को मार दिया ना तो तुम मैन से भी बहुत ज़्यादा रिनाउंड पर्सनैलिटी बन जाओगे, तुम आदमी से भी बड़े इंसान बन जाओगे, ओके, क्योंकि तुम किंग बन जाओगे। ओके, नॉट टाइम nor place did then adhere, and yet you would make both। मीन्स जो टाइम और प्लेस है वो मतलब कहना चाह रही है कि पहले तो ना टाइम सही था ना समय सही था, मतलब ना प्लेस सही था ना टाइम सही था, तो उस टाइम पे तुम नहीं मार पाए, उस टाइम पे किंग डंकन को तुम नहीं मार पाए। बट दे हैव मेड देमसेल्व्स एंड दैट देयर फिटनेस नाउ। पर अभी तो टाइम भी सही है और प्लेस भी सही है। अब तुम इस नर्वसनेस को हटाकर तुम सीधे डंकन को मार ही दो। मतलब कहना चाह रही है अभी तो डंकन हमारे पैलेस में भी है ना, हमारे पैलेस में एक रात रुकेगा भी, एक रात सोएगा, हमारे पैलेस में कल जाएगा, ठीक है। तो ये सही समय है ये एक्ट को करने का, ये सही समय है डंकन को मारने का। ओके, सो नेक्स्ट है डज अनमेक यू। मीन्स क्या ये तुम्हें नर्वस करता है, ये चीज़ तुम्हें नर्वस कर रही है कि मैं कैसे मारूं, क्यों मारूं, मतलब कैसे मारूं, क्या मतलब कोई पकड़ तो नहीं लेगा। ये बिल्कुल सही समय है, ये टाइम भी सही है, प्लेस भी सही है। ओके, अभी इस एक्ट को कर दो। लेडी मैकबेथ बहुत चढ़ा रही है मैकबेथ को टू किल द किंग डंकन। ओके, नेक्स्ट, आई हैव गिवन सक एंड नो हाउ टेंडर दिस टू लव द बेब दैट मिल्क मी। आई वुड व्हाइल आई was smiling in my face have plucked my nipples from their boneless gums and trashed the brains out had I so sown as you have done to this। Now, अब जो लेडी मैकबेथ बहुत ही ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल देने वाली है। कहती है कि where I was, yep, I have given suck and know how tender this to love the babe that milks me। ओके, अब कहती है आई हैव गिवन सक एंड नो हाउ टेंडर दिस टू लव द बेब। मतलब मुझे पता है कि अगर कहती है अगर मैं अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करने दूँ, ओके, देन आई नो ये सबसे ज़्यादा एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा मतलब मूवमेंट होता है एक मदर के लिए कि उसका जो बेबी है वो फीडिंग कर रहा है। पर अगर उस टाइम पे मेरी बेबी ने भी अगर मुझे काटा, मतलब मेरी जो ब्रेस्ट फीडिंग है ओके, अगर उसे प्लग किया मेरी जो ब्रेस्ट हैं ओके, उन्हें अगर प्लग किया फ्रॉम हिज माउथ उनके बोनलेस गम से, देन मैं भी उस बेबी को उसका जो मुंह है वो दीवार में मार दूंगी। कहना चाह रही है कि अगर मुझे पता है कि बेबी को फीडिंग कराना, ब्रेस्ट फीडिंग कराना मॉम का सबसे अच्छा मूवमेंट होता है, ओके, और इट वॉज स्माइलिंग इन माई फेस और आई वॉज स्माइलिंग, ओके, द बेबी वॉज स्माइलिंग अप एट मी। अगर जो बेबी है मतलब सिंपल सा समझो कि कहती है कि अगर मेरा जो बेबी है वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, अगर वो मुझ पर हंसा, ओके, मुझ पर हंसा तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। पर अगर उसने मेरे निपल्स जो हैं, अगर उसने मेरे जो ब्रेस्ट हैं उसे काट लिया, देन मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। मैं उसका सिर पकड़ के कहाँ मारूंगी? दीवार पे मारूंगी, और तब तक मारूंगी जब तक उसका दिमाग निकल ना जाए।
मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा लेडी मैकबेथ कितना ज़्यादा इन्फोर्स कर रही है मैकबेथ को टू किल किंग डंकन। ओके, सो हैड आई सो स्वान एज यू हैव डन दिस, जैसे तुम किंग डंकन को मारोगे वैसे ही मैं अपने बेबी को ही मार देती अगर वो मेरे जो ब्रेस्ट है उसे काटता। ठीक है, देखो हम लोग क्या करते हैं, अगर मॉमीज होती हैं तो व्हेन अ चाइल्ड कट हर ब्रेस्ट, सो इट इज़ अ वेरी गुड मूवमेंट फॉर देम कि अरे हाँ दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लाइक ही और शी डन लाइक दिस। बट लेडी मैकबेथ क्या कह रही है कि अगर उसने मेरे ब्रेस्ट को काटा और फिर मेरे ऊपर हंसा, वो काट कर मेरे ऊपर हंसा हो, तो मैं उसका दिमाग पकड़ के कहाँ मारूंगी, ज़मीन पे मारूंगी और तब तक मारूंगी जब तक उसका दिमाग निकलना चाहे। ओके, देन मैकबेथ सेज इफ वी शुड फेल, इफ वी शुड फेल मतलब अगर हम फेल हो गए तो, अगर हम किंग डंकन को नहीं मार पाए तो क्या होगा। देन लेडी मैकबेथ सेज वी फेल, वी फेल। अब लेडी मैकबेथ कहती है वी फेल बट स्क्रू योर करेज टू द स्टिकिंग प्लेस एंड विल नॉट फेल। मतलब कहना चाह रही है कि बस अपना करेज अपने पास रखो, बस अपने करेज को मतलब पकड़े रहो, हम फेल नहीं होंगे। ओके, अगर तुमने करेज अपना संभाले रखा तो हम फेल होंगे ही नहीं। When Duncan is asleep, where do the rather shall this day's hard journey? Secondly, invite him. His two chamberlains will I with wine and wassail to convince that memory, the warder of the brain, shall be a fume and the recipient of reason a lineback only. मीन्स कहना चाह रही व्हेन डंकन इज asleep, जब डंकन सो जाएगा, एंड ही श्योरली विल बी सून आफ्टर हिज डेज हार्ड जर्नी, गार्ड टू ड्रंक एंड लेस टू लॉस देयर मेमोरी। कहना चाह रही कि डंकन तो सो जाएगा, Where is the rather shall the day's hard journey? Secondly, invite him, his two guards. Will I with wine and vessel so convince that memory, the warder of the brain, shall be a fume and the receipt of reason a lineback only. मतलब मैं उसे क्या दे दूँगी, ड्रंक दे दूँगी, जिससे वो जो गार्ड्स हैं डंकन के वो सो जाएंगे। मतलब डंकन तो सो ही चुका है, अब उसके गार्ड्स को सोने के लिए मैं उन्हें ड्रंक दे दूँगी जिससे वो लोग सो जाएं। ओके, नेक्स्ट कहती है a lineback only when in Swedish sleep their drenched natures lies as in a dead. What cannot you and I perform upon the unguarded Duncan, what not put upon his spongy officers, who shall bear the guilt of our great quarrel. मीन मतलब कहना चाह रहा है, जो लेडी मैकबेथ है वो कहती है कि मैं डंकन के गार्ड्स को जो चिमनी होती है उसका स्मोक मतलब स्मेल करा दूंगी जिससे कि वो बेहोश हो जाएं, और उन्हें ड्रंक करा दूंगी जिससे कि वो अनकॉन्शियस हो जाएं, और वो किसकी तरह सो जाएं, पिग्स की तरह सो जाएं। जैसे पिग्स होते हैं ना, वो सो जाते हैं एकदम से बिल्कुल लाइक दे यूज्ड टू लुक वेरी एग्जॉस्टेड, है ना, और लेथार्जिक लगते हैं हर टाइम, ऐसे ही वो पिग्स की तरह सो जाएं। मैं उन्हें क्या कर दूँगी, चिमनी का स्मोक सुखा दूँगी, साथ ही मैं ड्रिंक भी दे दूँगी उन्हें जिससे कि वो सो जाएं। एंड डू वी कैन ले ऑल द ब्लेम ऑन द ड्रंकन सर्वेंट्स, और फिर बाद में हम अपना एक्ट करके जितना भी ब्लेम होगा वो किन पे डाल देंगे, ड्रंकन सर्वेंट्स पर डाल देंगे। ओके, नेक्स्ट मैकबेथ कहता है दैट bring forth men, children only for thy undaunted metal should compose nothing but males. Will it not be received when we have marked with blood those sleepy too? Means कहना चाह रहे हैं, काश, लेडी मैकबेथ कहती है काश मैं बॉयज़ को जन्म दूँ, क्या काश मैं लड़कों को जन्म दूँ
ओके, जिससे वो तुम्हारी तरह कैसे बन सके। सॉरी मैकबेथ कहता है, ये मैकबेथ कहता है कि काश तुम लड़कों को जन्म दो। मैकबेथ, लेडी मैकबेथ से कह रहे हैं काश तुम्हारे मतलब तुम लड़कों को जन्म दो, तुम बेबी बॉयज़ को जन्म दो, जिससे कि वो तुम्हारी तरह फियरलेस और करेजियस बन सके। क्योंकि मैकबेथ को भी करेजियस किसने बनाया है? लेडी मैकबेथ ने। मैकबेथ वॉज नॉट वेरी करेजियस, है ना। मैकबेथ को करेजियस किसने बनाया? लेडी मैकबेथ ने। तो मैकबेथ कहता है कि काश जो हमारे बेबी बॉयज़ हों वो भी तुम्हारी तरह ही करेजियस हो, मतलब अपनी माँ पर जाएं, तुम्हारी तरह ही वो करेजियस हों। ओके, और उनके अंदर भी फियरलेस स्पिरिट हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल्स में होती है। ओके, जो तुम्हारी फियरलेस स्पिरिट्स है, ओके, वो ही हमारे जो बेबी बॉयज़ हैं उनमें जाए, जो कि तुम्हारी जो फियरलेस स्पिरिट है वो सिर्फ और सिर्फ मेल्स में होती है, जो तुम्हारे अंदर है लेडी मैकबेथ। विल इट नॉट बी रिसीव्ड व्हेन वी हैव मार्क्ड विद ब्लड दो स्लीपी टू। और क्या तुम्हें मतलब पूरा विश्वास है, क्या तुम पूरी तरीके से कह सकती हो कि जो ये ड्रंकन सर्वेंट्स हैं, ओके, जब हम लोग मतलब इनका ड्रैगन जो है, इनका जो खंजर है उसे यूज़ करेंगे मैकबेथ को डंकन को मारने के लिए, जब हम इन सर्वेंट्स लेटे हुए होंगे उनके डैगर का यूज़ करेंगे, तो जितना भी ब्लेम होगा, जितना भी लोग समझेंगे, जो कुछ भी समझेंगे, वो यही समझेंगे कि डंकन को इन सोल्जर्स ने मार दिया। क्या तुम्हारा मतलब, क्या तुम बिल्कुल श्योर हो कि ये ऐसा ही होगा जो हमने सोचा है? मतलब कहना चाह रहा है मैकबेथ कि जब हम लोग उन सोल्जर्स को बेहोश कर देंगे, तो उनका डैगर से हम जब किंग डंकन को मारेंगे, तो सब लोग जो हैं, जितने भी स्टेट के पीपल हैं, वो सब क्या विश्वास करेंगे कि इन गार्ड्स ने ही किंग डंकन को मार दिया। क्या वो लोग विश्वास करेंगे? वो क्या जो हमने सोचा है वो हो पाएगा? ओके, सो आई एम अगेन सेइंग कि मैकबेथ क्या कहता है। मैकबेथ कहता है कि काश तुम बॉयज़ को ही जन्म दो, जैसे कि जो बॉयज़ हैं वो भी तुम्हारी तरह कैसे हों, फियरलेस हों। ओके, तुम ऐसी हो कि तुम सिर्फ मैस्कुलाइन जेंडर को ही जन्म दे सकती हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर उन्हीं की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तुम सिर्फ बॉयज़ को ही जन्म दे सकती हो, उन्हें भी अपनी तरह फियरलेस और करेजियस बना सकती हो। अगर हमने जो खंजर है वो उन सर्वेंट्स का यूज़ किया, उन सोल्जर्स का यूज़ करके उन्हीं के पास फेंक दिया, तो क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि जो लोग हैं, जो स्टेज है, वो यही समझेगा कि इन सोल्जर्स ने ही किंग डंकन को मारा है? Then Lady Macbeth says, "Who dares receive it other, as we shall make our grief and clamor roar upon his death." Okay, now Lady Macbeth says that कहती है कि who dares receive it other, as we shall make our griefs and clamor roar upon his death, means जब हम ऐसा दिखावा करेंगे कि हमने डंकन की जो मौत है वो हमने पहली बार सुनी है, और हम बहुत ज़ोर ज़ोर से रोएंगे। जब हम लोग ये सुनेंगे कि डंकन की मौत हो चुकी है, ओके, तो हम लोग दिखावा करेंगे बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने का। ओके, अगर हम लोग ऐसा दिखावा करेंगे कि हमने डंकन को डंकन की मौत को हमने पहली बार सुना है, हम नहीं जानते डंकन की मौत को, हमने बहुत रैंडमली सुना है। ओके, तो हम लोग बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोएंगे विद पेन व्हेन वी हर्ड ऑफ हिज डेथ। ओके, नेक्स्ट मैकबेथ सेज आई एम shattered, I am settled and bent up, each corporal agent to this terrible feat. Away and mock the time with fairest show, false face must hide what the false heart doth know. कहना चाह रहा है कि मैकबेथ कहता है कि अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ किंग डंकन को मारने के लिए। Okay, I am full ready to do this terrible thing, do this great and terrible thing. अब लेडी मैकबेथ से कहता है मैकबेथ कि जाओ और किसी और को डिसीव करो, किसी और को छलो, किसी और को अपना जो फ्रेंडशिप वाला फेस है उसे दिखाओ, पर अपने अंदर की जो फॉल्स फेस है उसे मत दिखाना। मीन्स कहना चाह रहा है कि
यू हैव टू हाइड योर ट्रेचरस मतलब होता है नमक हराम, मतलब हम लोग नमक हराम हैं। ओके, वो खुद कहता है। ओके, और जब अब तुम अपने इनोसेंस फेस को ऊपर रखो और जो मक्का नमक हराम फेस है, जो ट्रेशियस फेस है, वो उसे अंदर रखो और जाओ किसी और को अपनी इन फ्रेंडशिप वाली बातों से, इन फ्रेंडशिपलेस वाली बातों से, फ्रेंडलीनेस वाली बातों से किसी और को भी छलो जाओ। ओके, एंड हियर द सीन एक्सोएंट। ओके, तो इधर हमने देखा कि जो लेडी मैकबेथ है और मैकबेथ है वो कितने ज़्यादा मतलब दे आर लाइक अ ट्रेटर। ओके, पहले हमें लगता था सिर्फ लेडी मैकबेथ ही है, पर अब मैकबेथ भी हो चुका है, बिकॉज लेडी मैकबेथ ने उसे क्या कर दिया, उसे उकसाया है, उसे मोटिवेट किया है टू किल किंग डंकन। ओके, और उसने एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया है कि अगर मेरा जो बेबी होता, उसने यहाँ पे भी कहा है ना, अगर मेरा बेबी भी अगर मेरे ब्रेस्ट को काटता, ओके, और फिर हंसता, तो मैं उसे भी उसका सिर मारती दीवार में, उसे भी मतलब मार डालती। तो ये कितना बड़ा एग्जाम्पल शो किया है लेडी मैकबेथ ने। नाउ हियर दिस सीन एक्सोएंट, आई होप दिस सीन इज क्लियर टू यू। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सीन। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीन है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। So that's it. Bye bye. Stay tuned for more videos. Bye guys. And now we are going to start with our Act 2 Scene 1. Okay. And most probably your Act 2 Scene 1 is coming in your unit test 2. Okay. If Act 1, Act 2 Scene 2 is also coming, tell me in the comment section. So that's it. Bye bye. Stay tuned for more videos. And if you love it, don't forget to give this video a big thumbs up, subscribe my channel, press the bell icon. Bye guys.